Good morning, students. So, let us start same chapters, chapter 7, tertiary and quaternary activities. First video we have discussed about the tertiary activities and difference between secondary and tertiary activities. Now we will discuss about the tertiary, quaternary and quinary activities. Tertiary, quaternary and quinary. These activities are also known as service sector. It is called service sector because in this we are giving the services in tertiary activity also, in quaternary also, and in quinary. So that's why all these three activities are called service sector. Now first we will discuss about the tertiary activities. There are four types of tertiary activities that we will discuss now. Tertiary activities, four types. First is given tertiary activities. In the tertiary activities, that is trade and commerce. First is given trade and commerce. Trade and commerce, you know very well, the people, those who are doing the buying and selling purpose or doing the buying and selling of the goods and commodities, that is called trade and commerce. Then trade and commerce also, there are two categories, wholesale and retail trade. Wholesale and retail trade. Wholesale activities are those activities in that people are directly not getting the product from this. People are not getting product from this wholesale trade. Wholesale traders, what they are doing, they are directly contacted with the shopkeepers. They are giving the things to the shopkeeper. Then shopkeepers, they are giving to us. And these shopkeepers are known as retail trader. It means the shopkeepers which are available in our villages or in the cities, दे आर रिटेल ट्रेडर. होलसेल का मतलब होता है जो लार्ज अमाउंट में उस प्रोडक्शन चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जो डायरेक्टली किससे कांटेक्ट करते हैं, कंपनी से या इंडस्ट्री से कांटेक्ट करते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट लेंगे और फिर वो क्या करेंगे, उसको थोड़ा सस्ते दाम पे क्या है, रिटेल ट्रेडर को बेच देंगे. एंड रिटेल ट्रेडर विल गिव अस टू द थिंग्स ऑन द रिटेल ट्रेडर गिव अस ऑन द सेम प्राइस विच इज़ रिटन ऑन द प्रोडक्ट. जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है, रिटेल ट्रेडर उसी बेस पे हमारे को देता है. देन होलसेल ट्रेडर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ होलसेल ट्रेडर, अर्बन सप्लायर्स एंड रूरल मंडीज. इट मीन्स होलसेल ट्रेडर्स क्या करते हैं, अर्बन एरिया में भी सप्लाई करते हैं और रूरल एरिया में भी करते हैं. तो अर्बन एरिया में जो रिक्वायरमेंट है वो अलग है, रूरल एरिया में रिक्वायरमेंट अलग है. अकॉर्डिंग टू दैट दे आर डूइंग द एक्टिविटीज़. रिटेल ट्रेडर, अर्बन एंड रूरल. Retail trader means that there are the shops which are in the villages, they are also retail trader, and in the urban areas also there are retail trader. But there are categories they have made, urban and rural. These two categories are made, urban and rural. Urban, there are, you can say, chain stores, mail order, convenience shopping and PDS, public distribution system. These are in the urban areas. Urban areas you have seen the mall, shopping complexes, so these things are found in the urban areas. But in rural areas there are periodic market, means sometimes some markets are periodic. Periodic का मतलब होता है कोई एक हफ्ते में लगती है, कोई 6 दिन में, 5 दिन में लगती है, कोई 2 दिन में लगती है, वो periodic market होती है. स्टोर, स्ट्रीट पैडलिंग, जो गांव में गलियों में घूमते रहते हैं, वो हो गया. पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जैसे राशन वाला शॉप होता है आपका, वो होते हैं. तो वो आप सारे क्या होते हैं, वो रूरल एरिया के हैं. अर्बन एरिया के हैं चेन स्टोर, मेल ऑर्डर, जो आपका ऑनलाइन शॉपिंग होती है, दैट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस रिटेल ट्रेडर का. तो ये चीज़ें हमारी इसके अंदर आती है आपकी, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर, कन्वीनियंट शॉपिंग एंड PDS. दीज आर वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर ऑल्सो. सो आई एम जस्ट गिविंग द ओवरव्यू ऑफ दिस. देन नेक्स्ट इज गिवन अबाउट द transport. You know very well, there are rail network, road network, water transport, air transport. So rail and road network, you know very well about the railways and roadways. Water transport, there are two types of water transport. One is inland and second is oceanic. Inland means there are some rivers in our countries, those are used for the inland waterways. For example, Ganga river, so it is a large river, so it can be used for the waterways. We can send the things through this इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज का मतलब होता है कि जो अपने कंट्री के अंदर कुछ रिवर्स होती है, उनको हम वाटरवेज के तौर पे यूज़ करें, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करें. बिकॉज वी हैव हर्ड अबाउट दिस थिंग, हमने ये पढ़ा है कि जो वाटरवेज है वो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इन कंपेरिजन ऑफ अदर ट्रांसपोर्ट.
तो इसके अंदर इसका ये फ़ायदा है हमारे को। देन नेक्स्ट इज़ गिवन ओशियनिक। ओशियन यू नो वेरी वेल, ओशियन के अंदर क्या होता है कि जो आपकी शिप्स वगैरह होती है उनका यूज़ किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शिप्स, 2 तरीके की शिप्स इसके अंदर बताई गई है आपकी। वन इज़ गिवन पैसेंजर सर्विसेज एंड सेकंड इज़ गिवन कार्गो सर्विसेज। पैसेंजर्स जो आपकी शिप्स पैसेंजर को ले जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, विजिटर जो होते हैं उनको ले जाती है, जर्नी जो करते हैं। कार्गो देज आर यूज्ड ओनली फॉर द गुड्स, वस्तुओं को, सामान को इधर से उधर से ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो आपका क्या होता है, कार्गो सर्विसेज। तो ये आपका वाटर ट्रांसपोर्ट का हो गया। एयर के अंदर आपको पता है सेम ही होता है, एयर ट्रांसपोर्ट में भी क्या होता है, पैसेंजर सर्विस भी होती है, कार्गो सर्विस भी होती है, यानी पैसेंजर को ले जाने वाली एरोप्लेन, और कार्गो यानी सामान को ले जाने वाली एरोप्लेन। तो दिस थिंग्स आर यूज्ड इन दिस। देन नेक्स्ट इज गिवन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन के आपके कितने टाइप बताए गए हैं, देयर आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टेली कम्युनिकेशन, ऑडियो विजुअल, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में वही आएगा हमारा जो रोल है, रेल है, रोडवेज है, एयरवेज है, दिस विल कम इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। दे आर वट दे आर डूइंग, दे आर टेकिंग द मेल, जो आपके लेटर होते हैं और होते हैं वो क्या होता है, एरोप्लेन से भी जाते हैं, रेलवे से भी जाते हैं, और रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आपके लेटर वगैरह है जो आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट इज़ गिवन अबाउट द टेली कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज़ गिवन टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन देर आर 2 टाइप्स, लैंडलाइन एंड मोबाइल टेलीफोन। टेलीकम्युनिकेशन किससे करेंगे हम, टेलीफोन से करेंगे। टेलीफोन के 2 टाइप बताए गए, लैंडलाइन एंड मोबाइल। लैंडलाइन फ़ोन जो घर पे सीधे आपके घर पे होते हैं वो लैंडलाइन होता है, मोबाइल दैट वी आर यूजिंग। नेक्स्ट इज वन ऑडियो विजुअल। ऑडियो विजुअल, इन ऑडियो विजुअल यू नो वेरी वेल देर आर फिल्म्स। audio visual means that we can watch also and we can listen also. So in this films, radio, TV, print media there are newspaper and magazine. So these are the audio visual communication system. These are the means of audio visual communication. audio visual में आपका फिल्म्स हो गई, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर और मैगजीन हो गई। देन नेक्स्ट इज गिवन सर्विसेज। सर्विसेज मीन्स व्हाट टाइप ऑफ सर्विसेज वी आर गिविंग। सर्विसेज वी आर गिविंग financial banking, you know very well about the banking we are discussing, so we are taking the services also. Insurance जो बीमा वगैरह करवाते हैं, रियल एस्टेट, प्लॉट वगैरह जो होते हैं आपके खरीदना बेचना, दैट इज रियल एस्टेट। पर्सनल एंड प्रोफेशनल। पर्सनल मीन्स सम पीपल दे आर डूइंग दिस वर्क पर्सनली, जैसे आपका प्लॉट बेचने का काम प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो करते हैं। इंश्योरेंस का भी काम होता है, जो सम प्राइवेट बैंकिंग बैंक्स दे आर ऑल्सो डूइंग दीज एक्टिविटीज़। सो दे आर द पर्सनल एंड प्रोफेशनल। देर आर प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड NGO। NGO होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ पीपल क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, दे आर कॉल्ड NGO। तो दीज आर ऑल्सो डूइंग वर्क फॉर द दिस सर्विस सेक्टर। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट द टर्सरी एक्टिविटी। नाउ नेक्स्ट विल कम अबाउट द क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। तो what type of activities we are doing? Information based. Information based means the people, those who are doing the work to giving the information to the public. ऑफिसर्स, अधिकारी होते हैं जितने भी आपके IAS है, IPS है, what they are doing, they are giving information to us। वो हमारे को क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम आगे काम करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो भी काम होता है, जैसे आपका जितने भी ऑफिसर्स अधिकारी होते हैं वो आपका क्वार्टरली एक्टिविटीज़ में आते हैं। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो रिसर्च वर्क जितना भी होता है, साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, दोज हु आर डूइंग द रिसर्च वर्क, दे आर कमिंग इन द क्वार्टरली एक्टिविटीज़। नाउ नेक्स्ट लास्ट विल कम अप द क्वार्टरली एक्टिविटीज़। लास्ट विल कम क्वार्टरली एक्टिविटीज़। लास्ट आपका क्या आता है, क्वार्टरली एक्टिविटीज़। क्वार्टरली एक्टिविटीज़ में आपका क्या आएगा, 2000 हाई प्रोफेशनल्स, वो क्या होते हैं, क्वाइनरी एक्टिविटीज़, सॉरी क्वाइनरी एक्टिविटीज़। देर आर स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट मीन्स दोज हु आर मोर नॉलेजेबल अबाउट वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट और एनीथिंग, यानी जिसको उस पर्टिकुलर चीज़ की वो पूरा नॉलेज होता है, उसको हम उस चीज़ का उसका स्पेशलिस्ट मानते हैं। डिसीजन मेकर्स। डिसीजन मेकर्स मीन्स द डिसीजंस विच आर टेकन इन दिस, दे आर ऑल्सो टेकन ऑन द बेसिस ऑफ हाई प्रोफेशनल, दोज हु आर स्पेशलिस्ट। इट मीन्स द डिसीजंस विच आर टेकन इन द हाई गवर्नमेंट, जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो उनके साथ में जो बड़े अधिकारी मिलकर बड़े ऑफिसर्स होते हैं जो डिसीजन लेते हैं, दे आर कमिंग इन द क्वाइनरी एक्टिविटीज़। कंसल्टेंट, दोज हु आर गिविंग द कंसल्टेशन, सलाह देते हैं लोगों को किसी भी चीज़ के लिए, वो दे आर ऑल्सो कमिंग इन दिस। पॉलिसी फॉर्मुलेशन। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है कि जो क्या करते हैं,
पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन का मतलब होता है पॉलिसी बनाने वाले। पॉलिसी बनाने का मतलब होता है कि जो हमारे देश के लिए कौन सी पॉलिसी बढ़िया है, कौन सी लोगों को वेलफेयर के लिए होगी। द पॉलिसीज विच आर मेड बाय द पीपल, दे आर कमिंग इन द क्वेनरी एक्टिविटीज़। क्वेनरी एक्टिविटीज़ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोल्ड कॉलर जॉब्स, यानी इस एक्टिविटीज़ में काम करने वाले लोगों को हम क्या कहते हैं, गोल्ड कॉलर जॉब्स। जो क्वार्टनरी में होते हैं वो वाइट कॉलर जॉब्स होती है। ओके, सो दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर अस। क्वाइनरी एक्टिविटीज़ दोज आर गोल्ड कॉलर जॉब्स, दे आर नोन एज क्वाइनरी एक्टिविटीज़। होते कौन है इसमें, स्पेशलिस्ट, डिसीजन मेकर्स, कंसल्टेंट एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। दीज पीपल आर कमिंग इन द क्वेनरी एक्टिविटीज़। इट मीन दे आर द हाई ऑफिशियल पर्सनस, हाई ऑफिसर्स अधिकारी होते हैं, वो इसमें काम करते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस सर्विस सेक्टर, टर्शियरी एक्टिविटी, क्वार्टरली एक्टिविटी, क्वेनरी एक्टिविटीज़. So you will make this diagram in your notebook and understand the topic which we have discussed. Now in the next video we will discuss about these things in detail. Okay, thank you, have a nice day.